The eternal time factor has no beginning and no end. It is a representative of the Supreme Personality of Godhead, the maker of the criminal world. It brings about the end of the phenomenal world. It carries on the work of creation by bringing one individual into existence from another. And likewise, it dissolves the universe by destroying even the Lord of Death, Yamaraja. Translation with repetition. The eternal time factor has no beginning and no end. It is a representative of the Supreme Personality of Godhead, the maker of the criminal world. It brings about the end of the phenomenal world. It carries on the work of creation by bringing one individual into existence from another. And likewise it dissolves the universe by destroying even the Lord of Death, Yamaraja. Purport. By the influence of eternal time, which is representative of the Supreme Personality of Godhead, the father begets a son, and the father dies by the influence of cruel death. But by time's influence, even the Lord of cruel death is killed. In other words, all the demigods within the material world are temporary like ourselves. Our lives last for 100 years at the most, and similarly, although their lives may last for millions and billions of years, the demigods are not eternal. No one can live within this material world eternally. The phenomenal world is created, maintained and destroyed by the finger signal of the Supreme Personality of Godhead. Therefore, a devotee does not desire anything in this material world. A devotee desires only to serve the Supreme Personality of Godhead. This servitude exists eternally. The Lord exists eternally, His servitor exists eternally, and the service exists eternally. Thus ends up Bhaktivedanta purports of the third canto, 29th chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled Explanation of Devotional Service by Lord Kapila. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatadeshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. सो यहाँ पे जो है कपिल मुनि माता देवाहुति को इस अध्याय के अंत में काल के बारे में जो विवरण हो रहा है उसका फाइनल कंक्लूजन यहाँ पे दे रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से कुछ लोगों से हम देख रहे हैं कि काल के बारे में कपिल मुनि माता देवाहुति को वर्णन करते हुए आ रहे हैं।
क्योंकि माता देवहूति ने इस अध्याय की शुरुआत में काल का बारे में विवरण देने के लिए उन्होंने बताया, कालः ईश्वर रूपस्य, काल जो है भगवान ईश्वर के रूप है, उनका स्वरूप है, उनकी शक्ति है। और इस अध्याय का शीर्षक है एक्सप्लेनेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस। पिछले 2-3 अध्याय से कपिल मुनि यही करते आ रहे हैं, भक्ति के बारे में बता रहे हैं, डिवोशनल सर्विस के बारे में वर्णन करते आ रहे हैं। लेकिन इस अध्याय में कपिल मुनि को प्रश्न पूछा जाता है कि काल के बारे में विवरण करिए, लेकिन शीर्षक है एक्सप्लेनेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस। हमने बहुत सारा एक्सप्लेनेशन सुने विस्तृत रूप से कपिल मुनि का, लेकिन काल का भक्ति से क्या लेना देना, ये हम में एक सवाल मन में उठ सकता है। और यहाँ पे काल को जो है बहुत ही घोर रूप से भी प्रकट किया गया है, लेकिन क्योंकि ये सच है, काल जो है सब में डर पैदा करता है। भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं, कालोऽस्मि लोकक्षय कृत। लोकक्षय, जब लोक ही क्षय हो जाता है तो लोक के अंदर रहने वाले का क्या बात है। तो सबको यहाँ क्षय होना है, और क्षय हमको पसंद नहीं है। क्षय होने से हमको डर लगता है। और इससे क्या लेना देना, एक्सप्लेनेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्ति से क्या लेना देना। क्योंकि ये काल जो है, भक्ति मतलब केवल एक एंगेजमेंट एक्टिविटी नहीं है जो फिजिकली सर्विस करते हैं। यस, वो तो है, वो डेफिनेटली है। भक्ति में ज्ञान, जैसे भक्ति में ज्ञान भी है और वैराग्य भी है। तो जब भक्ति में जो है भगवान के संबंधित हर एक विषयों पर भक्त को समझना चाहिए। और काल जो है भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि है, भगवान कृष्ण की शक्ति है, भगवान कृष्ण के स्वरूप है। कालः ईश्वर रूपः, ईश्वर तो एक ही है और कोई नहीं है। भगवान कृष्ण एकल ईश्वरः कृष्णः। तो इसलिए जो है बहुत अच्छे तरह से काल के बारे में यहाँ वर्णन कपिल मुनि करते हुए आ रहे हैं। ये हमको डराने के लिए नहीं है, ये हमको जागरूक करने के लिए है कि हम जिस वातावरण में, जिस भौतिक वातावरण में हम रहते हैं, जहाँ पे काल का अनुभव किया जाता है, उसके बारे में समझना चाहिए। क्योंकि ये काल जो है हम पर हमेशा लागू पड़ता है, कोई भी काल से वंचित नहीं रह पाएगा। यहाँ पे भौतिक हो या कोई भी वस्तु हो, भौतिक वस्तु, हर एक वस्तु जो है यहाँ पे काल से प्रभाव हो जाता है। इसलिए यहाँ पे बताया गया है काल का वर्णन, उसका लक्षणों के बारे में और यहाँ वर्णन किया गया है। सो अनंत अंतकरः कालः सः अनंतः। काल का एक लक्षण है एंडलेस। अनंतः मतलब जिसका सीमा नहीं होता है, जिसका कोई अंत नहीं होता है, जिसका कोई अंत नहीं होता है, जिसका कोई सीमा नहीं होता है। हर एक इस पृथ्वी के, इस ब्रह्मांड के हर एक कोने कोने में काल का प्रभाव लग जाता है। चलो हम कहीं पे छुपा के रख लेते हैं कुछ वस्तु को, यहाँ पे काल का प्रभाव नहीं हो सकता, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बच जाऊंगा काल से, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इज एंडलेस, इसकी कोई सीमा नहीं है और इसका अंत भी नहीं है। चलो अभी 10 साल तक काल का प्रभाव लगा रहेगा, उसके बाद नहीं है, नहीं। कब तक काल का प्रभाव रहेगा? इसी श्लोक में अंत बताया है, मारयन् मृत्युनान्तकम्। इस पूरे विश्व का विनाश करने तक काल का प्रभाव चलता रहेगा। इस सृष्टि का विनाश भी काल से ही होता है। जैसे मैंने अभी बताया भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है, लोकक्षय कृत, कालोऽस्मि लोकक्षय कृत।
तो काल का प्रभाव असीमित है और समय से बंधित नहीं है, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। समय, काल स्वयं समय देता है सबके लिए। सो अनंतः अंतकरः डिस्ट्रॉयर, जैसे मैंने बताया, लोक क्षय कृत, सबका विनाश कर लेता है। अनादिर आदिकृत अव्ययः, अनादि मतलब इसका कोई शुरुआत नहीं है। जिस तरह से भगवान की कोई शुरुआत नहीं है, उसी तरह भगवान की जो ये शक्ति, काल शक्ति जो है, इनका भी कोई शुरुआत नहीं है। ऐसा नहीं समझना है काल इस भौतिक जगत में, भले काल का प्रभाव हम इस भौतिक जगत में ही देखते हैं, आध्यात्मिक जगत में काल का कोई प्रभाव नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि काल जो है भौतिक है, नहीं। भगवान की संबंधित हर शक्ति जो है वो जो है अनादिर है। जिस तरह से भगवान अनादिर है, भगवान की शक्ति भी अनादिर है। अनादिर आदिकृत, आदिकृत मतलब वो क्रिएटर है, सबका सृष्टि का वो कारण है। अव्ययः, अनादिर आदिकृत अव्ययः, अव्ययः मतलब जिसका कोई बिगिनिंग नहीं है, जो एटर्नल है। प्रभुपाद जी यहाँ पे ट्रांसलेशन में बताते हैं, वर्ड टू वर्ड मीनिंग में बताते हैं, नॉट लायबल टू चेंज, इसमें परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन नहीं आएगा मतलब वो शाश्वत है, जैसे है वैसे ही रहेगा, उसका प्रभाव वैसा ही रहेगा, प्रभाव में कोई कमी नहीं होगी। हमारी शक्ति का प्रभाव अभी है, थोड़ा समय तक रहेगा हमारा क्षमता, उसके बाद जो है क्षमता घट जाता है। लेकिन काल इस प्रकार से नहीं है, उसकी क्षमता बराबर शुरुआत से, सृष्टि का शुरुआत से अंत तक उतना ही प्रभावशाली रहता है। वीक हो गया ऐसा नहीं है, हम लोग वीक हो जाते हैं, वो भी किससे? काल के वजह से ही होते हैं। काल का प्रभाव हम में दिखता है, उल्टा तो काल का प्रभाव खुद अव्यय है, वो चेंज नहीं होता, लेकिन दूसरों में चेंज लाता है, वो दूसरों में परिवर्तन लाता है। जो हम आज दिखते हैं वो कल नहीं दिखेंगे, मतलब हमारा शरीर के बारे में बता रहे हैं। जो हम पहले दिखते थे वो नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि वो काल का प्रभाव है जो हम पर लगा रहता है। लेकिन काल के ऊपर काल का प्रभाव ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि काल स्वयं भगवान कृष्ण की शक्ति है, भगवान कृष्ण है। जन्म जने न जनयन, ये बहुत अच्छा है, इसके बारे में अच्छे से समझने का ज़रूरी है। यहाँ पे कपिल मुनि आगे कह रहे हैं, जन्म जने न जनयन, काल के माध्यम से जन्म मतलब जो जन्म लेता है। कौन जन्म लेता है यहाँ पे? योनियाँ, जीव, चाहे वो मनुष्य हो या कोई भी प्राणी हो। 84 लाख में से जो भी आप पकड़ ले, उनको यह जन्म लेता है। जो जन्म लेता है उसको जन्म कहा गया है यहाँ पे। जन्म जनेना, जनेना मतलब किसी और योनि के माध्यम से वो जन्म लेता है। जन्म जनेन जनयन। और मारयन मृत्यु अंतकम, मारयन मतलब डिस्ट्रॉय, किसको डिस्ट्रॉय करता है? मारयन मृत्यु अंतकम, जो यमराज जो है इस भौतिक जगत में मृत्यु लोक का वो अधिपति है, हेलिश प्लैनेटरी सिस्टम का वो अधिपति है, जो यहाँ पे मृत्यु का नियम लागू कराने में वो भगवान का सहायता करते हैं। काल जो है उनको भी नहीं छोड़ता है। तो हमें छोड़ने की बात सोचने का भी नहीं है। जो यमराज जी जो है, जो प्रसिद्ध है जानने के लिए, लॉर्ड ऑफ डेथ, इज अ कंट्रोलर ऑफ डेथ, उनके दूतों को भेजते हैं यहाँ पे। और जो जीव भौतिक जगत में कृष्ण के प्रति भक्ति नहीं करते हैं, जो भौतिक जीवन में व्यस्त रहते हैं, सोच करके हाँ मैं मस्त रह सकता हूँ यहाँ पे, तो उन लोगों को
उनके दूतों के माध्यम से पाश से पकड़ करके घसीट करके ज़बरदस्ती घसीट करके यमराज के तक ले चलते हैं और वो दंड देते हैं, और काल जो है उस यमराज को भी नहीं छोड़ते हैं। यानी काल का जो प्रभाव है यमराज भी एग्जम्प्टेड नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पे कोई भी शाश्वत नहीं है, चाहे वो कोई भी देवी देवता हो या यमराज भी स्वयं हो, वे भी काल के वश से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कंक्लूजन इस अध्याय का, इस अध्याय में बहुत ही अच्छा काल के बारे में वर्णन करते हुए फाइनल कंक्लूजन दे रहे हैं। ऑफकोर्स अगले कुछ श्लोकों में भी काल के बारे में वर्णन करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है हम देख सकते हैं काल का फाइनल जो उनका लक्षण है, जिसको समझना चाहिए। जो कपिल मुनि को प्रश्न पूछा गया था कि काल के बारे में वर्णन करिए, यहाँ पे जो है हम देख सकते हैं कपिल मुनि बहुत ही अच्छे तरीके से बताते हुए काल के बारे में समाप्त कर रहे हैं इस अध्याय में। और ये काल के माध्यम से जो है भगवान जो है यहाँ पे सृष्टि करते हैं, निर्माण करते हैं, उसका मेंटेनेंस भी करते हैं और उसका डिस्ट्रक्शन भी करते हैं। भौतिक जगत में जो है सतत जो है सृष्टि और विनाश और उसका पोषण कंटिन्यूसली चलता रहता है। लेकिन भगवान को ये सब करने के लिए, सृष्टि का और संहार और विनाश या में पालन करने के लिए भगवान को स्वयं क्या यहाँ पे आने का आवश्यकता है? इस भौतिक जगत में ये सब करने के लिए इस सृष्टि में बहुत सारा क्रिएशन देख रहे हैं और बहुत सारा डिस्ट्रक्शन भी देख रहे हैं, और भगवान बता रहे हैं कि ये सब मैं करता हूँ, और ये करने के लिए भगवान को क्या स्वयं आने की ज़रूरत है कि नहीं, ये बारे में इस श्लोक में बहुत अच्छे से समझाया गया है। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं इस भावार्थ में, by the influence of the time which is representative of the Supreme Personality of Godhead, the Father begets a son. काल के प्रभाव से जो काल कृष्ण के प्रतिनिधि बनते हुए पिता जो है पुत्र को जन्म देता है, और उसके बाद जो है पिता का मरण भी हो जाता है। तो ये भगवान का बहुत अच्छा व्यवस्था उन्होंने बनाया है कि किस तरह से सृष्टि वो यहाँ पे रचाते हैं। हाउ डज ही क्रिएट विद इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। उन्होंने इस प्रकार का एक अरेंजमेंट बनाया है जहाँ उनको आने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे सृष्टि करने के लिए। उन्होंने क्या नियम बनाया यहाँ पे, काल के माध्यम से पिता जो है पुत्र को जन्म देता है और इस प्रकार से क्रिएशन हो रहा है, और वो पिता जो है कुछ समय के बाद उनका भी विनाश हो जाता है, और पुत्र जो है इन द मीन टाइम वो भी बड़ा हो जाता है। वो भी जब बड़ा हो जाता है वो भी जो है पुत्र को जन्म देता है, और इस बीच में पिता का मृत्यु भी हो सकती है। तो इस तरह से जो है एक कंटिन्यूअस साइकिल अरेंजमेंट जो है भगवान ने बनाया है क्रिएशन के लिए। और पिता जब पुत्र को जन्म लेता है तो पिता में एक भावना जागृत होता है। क्या भावना जागृत होता है? एक अटैचमेंट का भावना जागृत है। ये मेरा पुत्र है, आई एम सपोज टू टेक केयर ऑफ दिस चाइल्ड। एक भावना आता है ना, इज माई चाइल्ड, आई शुड टेक केयर। इसको बोलते हैं ड्यूटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी। इस रेस्पॉन्सिबिलिटी की भावना से वो पुत्र को मेंटेन करता है। तो इस तरह से मेंटेनेंस भी हो गया। और इसी तरह डिस्ट्रक्शन भी हो जाता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कुछ श्लोक के पहले
प्रभुपाद जी बताते हैं, He causes every being to be annihilated by another. He causes the annihilation of every being through another being. He मतलब जीव. One living being becomes the cause of annihilation of another being. एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति का अंत के लिए कारण बन जाता है. इस तरह से भगवान जो है इस भौतिक जगत में सृष्टि या पोषण करने के लिए उनको स्वयं आने की ज़रूरत नहीं है. भगवान का ये एक अच्छा वंडरफुल अरेंजमेंट उन्होंने इस प्रकार से किया है कि वो ऑटोमेटिकली चलता रहे. और ये है भगवान का सुप्रीम इंटेलिजेंस, ये भगवान का अक्लमंदी है. खुद यहाँ पे आए बिना यहाँ पे सृष्टि का मेंटेनेंस का, डिस्ट्रक्शंस का वो मैनेज यहाँ पे करते हैं. ये बहुत जानने का ज़रूरी है, जो आज के वैज्ञानिक और जो नास्तिकवादी है उनको जानने की ज़रूरत है. क्योंकि नास्तिकवादी सोचता है कि हम भी तो कर सकते हैं, हम भी तो क्रिएट कर रहे हैं. हमारे बुद्धि में और भगवान की बुद्धि में क्या फ़र्क है? हम में और भगवान में कोई भेद नहीं है. क्योंकि देखो हम भी बहुत अच्छे से यहाँ पे सृष्टि कर रहे हैं, यहाँ पे निर्माण हम भी कर सकते हैं, इसलिए भगवान में हम में कोई भेद नहीं है, ऐसा समझते हैं नास्तिकवादी या आज के वैज्ञानिक जो है. तो प्रभुपाद जी एक उनके लेक्चर में ये समझाते हैं हमको कि मनुष्य भी सृष्टि करता है. इस भौतिक जगत में बहुत सारे क्रिएशन आप देख रहे हैं, बहुत सारे इन्वेंशंस हम देख रहे हैं, साइंटिफिक इन्वेंशंस हम देख रहे हैं. समय समय अनुसार बहुत सारा इन्वेंशन देखा है हमने. पहले बिजली नहीं थी, बिजली आ गई यहाँ पे. बिजली किस तरह से जाना, पहले माइक्रोफोन नहीं था, आज हम बात करके सुन पा रहे हैं एक दूसरे को, दूर दूर तक बैठ के सुन सकते हैं हम लोग. माइक्रोफोन आ गया, ये सब मनुष्य का इन्वेंशन है. तो कोई सोच सकता है हाँ सही बात है, मनुष्य के पास भी उतना ही सामर्थ्यता है जैसे भगवान के पास है, तो कोई भेद नहीं है भगवान में और हम हमारे बीच में. प्रभुपाद जी कहते हैं उनके एक लेक्चर में कि क्वालिटेटिवली लग सकता है कि हमारे और भगवान की बुद्धि में या अक्लमंदी में कोई भेद नहीं हो, लेकिन क्वांटिटेटिवली ये नहीं है कि हम में और भगवान में एक सरकता है. जैसे उदाहरण देते हुए एक वैज्ञानिक जो है, एक नास्तिकवादी जो है, प्रभुपाद को बताते हैं देखो हमने इतना अच्छा क्रिएशन किया है. जैसे घड़ी है, पहले जो है घड़ी हुआ करता था, आप चाबी देते हैं तो वो चलने लगता है. वो अभी उस आज के टेक्नोलॉजी में वो घड़ी नहीं देख पाते हम, जो इसको चाबी देने के बाद वो चलने लगता है. और घड़ी के अंदर बहुत सारा फाइन अरेंजमेंट्स है. आज वो सब देखने को नहीं मिलेगा. घड़ी देखना है तो मोबाइल में देख सकते हैं हम. अलार्म चाहिए तो भी हम मोबाइल में रख के याद रख सकते हैं. भले घड़ी का महत्वता आज नहीं है, लेकिन वो नास्तिकवादी चुनौती दे रहा था प्रभुपाद को, देखो हम भी भगवान के जैसे ही है, भगवान हमसे भेद नहीं है या हम भगवान से भेद नहीं है. देखो हमने इतना अच्छे से एक घड़ी का निर्माण किया, चाबी दो वो चलने लगता है अपने आप, मस्त है. तो प्रभुपाद जी उनको समझाते हैं उत्तर में, क्या समझाया होगा प्रभुपाद ने? प्रभुपाद जी जब भी उत्तर देते थे हमको पता है वो एक हथौड़ा का उत्तर देते हैं. तो प्रभुपाद जी कहते हैं आपने भले ही एक घड़ी को आपने निर्माण कर दिया है, कोई बात नहीं है, लेकिन भगवान का जब निर्माण होता है वो एक स्त्री और एक पुरुष का निर्माण कर देते हैं, और उसके बाद वो हजारों स्त्री पुरुषों का वो लोग अपने आप निर्माण कर लेते हैं. सिर्फ एक स्त्री और एक पुरुष को निर्माण किया उन्होंने, उसके बाद जो है हजारों पुरुष आ गए, हजारों योनियां आ गए.
जैसे कि हमारे गौशाला में पहले हमने 7-8 गायों को लेकर आए। कोई लोग, पुराने लोग आते हैं तो बताते हैं, प्रभु जी कितने गाय बढ़ गए, देखो शुरुआत में 4-5 ही तो थे यहाँ पे। तो ये भगवान का एक्सपर्ट अरेंजमेंट है। लेकिन प्रभुपाद जी आगे बढ़कर के कहते हैं, भगवान ने तो एक स्त्री और एक पुरुष का निर्माण कर दिया और उसके बाद हजारों योनियों का जन्म हो गया, लेकिन आप भगवान के जैसे एक मेल वॉच, एक फीमेल वॉच को नहीं जन्म दे सकते हो, क्रिएट नहीं कर सकते हो, जिसके वजह से आप हजारों वॉच को क्रिएट कर सकते हैं। आपको हर वॉच को आप अपने आप बैठ करके बनाना पड़ेगा, तो ही आप हजारों वॉच बना सकते हो, जिसके लिए आपको बड़ा बड़ा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, फैक्ट्री लगाना पड़ेगा, हजारों मजदूरों को लगाना पड़ेगा उसके पीछे, उसमें टेक्नोलॉजी लगाना पड़ेगा, उसके सबके झंझट को झेलना पड़ेगा। कभी स्ट्राइक होगा, कभी ले ऑफ होगा, कभी वो ठीक से काम नहीं करेगा, गाड़ी डिफेक्टिव गाड़ी निकल के आएगा, कस्टमर से कंप्लेन आएगा, ये क्या गाड़ी बनाया आपने। लेकिन भगवान जो है, उनकी क्रिएशन परफेक्ट है, उनको इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मनुष्य जो है ये भूल जाता है, उसका क्षमता जो है वो सीमित है। थोड़ा बहुत कुछ चमत्कारी जैसे कुछ करने लगा, वो सोच लेगा मैं भी भगवान के जैसे बुद्धिमान बन गया मैं। ये मनुष्य का एक गलत विचार है। भगवान के जैसे भले बुद्धि क्वालिटेटिवली रह सकता है, लेकिन क्षमता के अनुसार भगवान की क्षमता से वो तुलना नहीं कर सकता है। और भक्त जो है ये जानता है, हर व्यक्ति जो है उनके अपने अपने क्षमता होती है सृष्टि करने के लिए। सब में क्रिएटिव पोटेंसी है, कुछ क्रिएट करने के लिए पोटेंसी है, क्षमता है। और खुद के कर्म सिद्धांत के अनुसार उनको उनके हिसाब से शक्ति दिया जाता है भगवान से, सृष्टि स्थिति और पोषण, स्थिति और संहार करने के लिए। जैसे कि चिड़िया जो है वो उसका घोंसला बना लेता है पेड़ पे, वो भी उसका एक चिड़िया का भी एक क्रिएटिव पोटेंसी है। कभी आप फॉरेस्ट में जाते हैं तो पेड़ में अच्छे अच्छे घोंसले बनाए रखते हैं, अरे भाई कैसे अच्छे से बनाया है इसने, इतना अच्छे क्रिएटिवली बनाया है। वो उसका क्रिएटिव पोटेंसी है, क्रिएटिव इंटेलिजेंस है। भले वो छोटा सा चिड़िया हो, या मेरे जैसे हमारे जैसे मनुष्य हो, हम बड़े बड़े इमारतें बनाते हैं और उसमें घोंसले बनाते हैं, गगनचुंबी इमारतें बनाते हैं और वहाँ पे हम घर बना लेते हैं, जिसको प्रभुपाद जी कहते हैं पिजन्स होल। जिस तरह से पेड़ में अनेकों पिजन जा कर के वहाँ घोंसला बना देता है, उसी तरह हम भी जो है बड़े बड़े इमारतें बना देते हैं और वहाँ पे घोंसले बना देते हैं, वहाँ पे घर बना देते हैं, और हम सोचते हैं कि हम बहुत एडवांस्ड हैं। प्रभुपाद जी एक शब्द में ठोकर मार देते हैं, ये तो चिड़िया के पिंजरा है, घोंसला है, पिजन्स नेस्ट। पूरा जो हाव भाव उसके पीछे डाला था प्रभुपाद एक शब्द में तोड़ देते हैं। रिसेंटली एक भक्त ने बताया था, मैंने गिफ्ट सिटी में एक बिल्डिंग है 35 फ्लोर से प्रभु जी, उसमें पेंट हाउस मैंने खरीद लिया। चलो अच्छी बात है, घोंसला खरीद लिया है पेंट हाउस में। और ये प्रभुपाद जी का कहना है। सो सबका अपना अपना शक्ति होता है कर्म के सिद्धांत के अनुसार, लेकिन ये क्षमता पाने से हम भगवान के सर के नहीं बन जाते हैं। तो भगवान की दिए हुए शक्ति के माध्यम से हम कुछ क्रिएट कर पा लेते हैं, उतना ही है। ये भगवान में और हम में भेद है, ये भगवान में और हम में फर्क है। इसलिए प्रभु यहाँ पे कपिल मुनि कह रहे हैं, जन्म जने न जनयन,
एक योनि जो है दूसरे योनि के माध्यम से वो जन्म लेता है। और ये कैसे हो रहा है? ये काल के प्रभाव से हो रहा है। बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ द टाइम, बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ एटर्नल टाइम, फादर बिगेट्स ए सन। एक जीव जो है दूसरे जीव को जन्म लेता है और उनको मेंटेन भी किया जाता है। जैसे मैंने बताया, एक भावना आता है, अरे ये मेरा पुत्र है, मुझे इनका ध्यान रखना है, तो मेंटेनेंस भी हो रहा है उधर। ऐसे नहीं भगवान को स्वयं आकर के मेंटेन नहीं कर पाते हैं, अक्षमता है उनका, उनकी क्षमता नहीं है, इसलिए नहीं यहाँ आके मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए हमारे माध्यम से मेंटेन हो रहा है। नहीं, अगर वो चाहे वो आके कर भी सकते हैं। जैसे भगवान कृष्ण जब द्वारिका में जब भगवान कृष्ण रहे तो उन्होंने 16,108 रानियों के साथ 16,108 महलों में वो रहे, स्वयं पर्सनली मेंटेन कर रहे थे वो। तो उन्होंने वो दिखाया कि आई एम नॉट इनकेपेबल ऑफ डूइंग। 16,000 क्यों, 16 बिलियन, 16 मिलियन, 16 ट्रिलियन, सब कुछ वो मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन भगवान को ये सब करने के लिए पर्सनली ज़रूरत नहीं है। इसलिए भगवान जो है उनकी शक्ति के माध्यम से सृष्टि, स्थिति, प्रलय का वो जो प्रोसेस है उसको मैनेज करते हैं। यहाँ पे हम लोग बद्ध आत्मा है इस भौतिक जगत में, इसलिए हमको काल के माध्यम से यहाँ पे उसके अरेंजमेंट के माध्यम से हमको गुजरना पड़ता है। जब तक हम भौतिक जगत में हैं, इस प्रोसेस के थ्रू हमको जाना ही पड़ता है। आगे बढ़कर के प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं इनके भाषांतरण में कि इस भौतिक जगत किस प्रकार का जगत है। प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पे, The eternal time factor has no beginning and no end. It is a representative of Supreme Personality of Godhead, the maker of the criminal world. भगवान को यहाँ पे क्या कहा गया है? मेकर ऑफ द क्रिमिनल वर्ल्ड। सिर्फ वर्ल्ड नहीं बोला यहाँ पे, क्रिमिनल वर्ल्ड। बाप रे, ये तो बहुत हो गया, बहुत बड़ा चीज़ है। किसी को हम क्रिमिनल बोलेंगे तो हमको कितना दुख लगेगा, क्या भाई मुझे क्रिमिनल बोलते हो। लेकिन यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं क्रिमिनल वर्ल्ड। इस जगत का लक्षण क्या है? क्रिमिनल। क्रिमिनल मतलब क्या है? जो सरकार के नज़र पे धोखेबाज है, सरकार के नियम को उल्लंघन करता है, जो दिए हुए मार्गदर्शन पे नहीं काम करता है, जो गैर कानूनी काम करता है, उनको क्या कहा जाता है? क्रिमिनल। जो मिस्चीवियस एक्टिविटीज़ करता है उसको क्रिमिनल कहा जाता है। और जब वर्ल्ड को ही क्रिमिनल कहा गया था, मतलब इस पूरे सृष्टि में जो भी है सब लोग क्रिमिनल है। वर्ल्ड ऑफ क्रिमिनल्स। हम चाहे कितने भी अच्छे बनना चाहेंगे, काल का प्रभाव इतना सटीक है कि यहाँ पे जो भी है, एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति के ऊपर पाँव रख करके आगे बढ़ना चाहता है। किसी न किसी को किसी न किसी तरह वो क्षति पहुँचा करके आगे बढ़ना चाहता है यहाँ पे। इसलिए जो है इस भौतिक जगत को क्रिमिनल वर्ल्ड कहा गया है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं ये भौतिक जगत जो है जेंटलमैन के लिए नहीं होता है। ये भौतिक जगत जेंटलमैन के लिए नहीं है, क्रिमिनल्स के लिए है। अगर कोई सज्जन व्यक्ति रहना चाहता है, वो ये जगह नहीं है उनके लिए। अगर कोई सज्जन व्यक्ति बनना चाहता है, उनको इस जगत में नहीं रहना चाहिए। तो इसका मतलब अगर ये वर्ल्ड क्रिमिनल वर्ल्ड है तो इसका मतलब ये है कि भगवान की जो क्रिएशन है वो फॉल्टी है। भगवान ने गलत क्रिएशन कर दिया कि जहाँ पे सिर्फ क्रिमिनल्स, सब लोग क्रिमिनल हैं यहाँ पे। नहीं, भगवान के दूसरा भी एक क्रिएशन है जिसको आध्यात्मिक वर्ल्ड कहा जाता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहा जाता है, जहाँ पे कोई क्रिमिनल्स नहीं रहते हैं।
स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो भी रहते हैं सब लोग भगवान के भक्त हैं। लेकिन और भगवान चाहते हैं कि हम लोग वहाँ पे आए। भगवान चाहते हैं कि हम सब उस जगत में आए, इस क्रिमिनल वर्ल्ड को छोड़ कर। लेकिन हम लोग जो है, हम लोग नहीं जाना चाहते हैं। जिस तरह से जो है, जो गंदी नाली में जो कीड़े रहते हैं वो सोचते हैं कि ये गंदी नाले में भी हम बहुत अच्छे हैं, मस्त है, हम यहाँ पे खुश है यहाँ पे। तो हमारा भावना इस तरह से है, हम इस भौतिक जगत में सुख है, बहुत अच्छा लगता है हमको यहाँ रहने, इस तरह से भावना रखते हैं, इसलिए हमको यह भौतिक जगत अच्छा लगता है, यहीं पे रहने के लिए इच्छुक रखते हैं। लेकिन भगवान चाहते हैं कि हम उनके आध्यात्मिक जगत में आए, इस क्रिमिनल वर्ल्ड को छोड़ करके। आगे बढ़ करके श्रील प्रभुपाद जी इस भावार्थ में और कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कह रहे हैं कि ये भौतिक जगत जो है, इसका सृष्टि, इसका पोषण और इसका विनाश जो है केवल फिंगर सिग्नल से हो जाता है। देखिए, इशारे से हो जाता है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इशारा करना है, कर दो, ये हो गया। जैसे हम कोई बड़े व्यक्ति के पास जाते हैं कुछ काम लेकर के, कोई पॉलिटिशियन है, कोई मंत्री है, हमको कुछ काम चाहिए उनको, वो क्या करेगा, किसी को इशारा है, देख लो ये, बस हो गया काम। ये भगवान का सुप्रीमेसी है। दिस शोज दैट भगवान का कितना सुप्रीमेसी है कि वो किसी का इशारे पे लोगों को मार्गदर्शन, डायरेक्शन देता है और काम अपने आप हो जाता है। और नहीं होने का बात नहीं है, इशारा दे दिया मतलब होना है, नहीं होने का बात नहीं है। क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो जिसको डायरेक्शन दिया है, अगर वो नहीं करता है, काम नहीं करता है, तो अगर पता चला इसने नहीं किया तो इसके पास दंड देने के लिए भी उतना ही अधिकार है। जब हम कोई बड़े व्यक्ति के पास काम लेके जाते हैं यार, काम वो डेलीगेट करता है, अगर वो नहीं करता है तो हम देखते हैं वो बड़े व्यक्ति को जब पता चलता है मेरा बताया हुआ काम नहीं किया तुमने, तो उसको दंड मिला जाता है। ये दिस शोज दैट सुप्रीमेसी ऑफ द लॉर्ड। इसलिए बताया गया है सब लोग देव देवता है, सभी लोग यहाँ पे भगवान के भय से सृष्टि में संचलन करते हैं। Fear of the Lord, sun is rising, sun is setting, moon is rising, air is flowing, wind is blowing, rivers are flowing, everything is happening out of fear of the Lord. कैसे हो रहा है? By finger signal, इशारों से, केवल इशारों से सब कुछ चल रहा है अपने आप। ये है भगवान का सुप्रीमेसी। हमारे फिंगर सिग्नल से क्या चलने वाला है? पत्ता भी नहीं हिला पाएंगे हम लोग। हम पत्ता को बोलेंगे हिल, वो हिलेगा नहीं। लेकिन हमको अहंकार आ जाता है, देखो हम सब कर रहे हैं ये सब। भगवान का कितना अहंकार होना चाहिए। देखिए, हम में अहंकार है मतलब भगवान में भी अहंकार है ना, इसलिए तो हमारे में अहंकार है। लेकिन हमारा अहंकार अलग तरह का अहंकार है। भगवान का अहंकार जो है सच्चा अहंकार है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, सुप्रीम है। उनका अहंकार दिखाना जायज है। आई एम द कंट्रोलर। देखो कितना भगवान बोल्डली बोलते हैं, आई एम द कंट्रोलर। लेकिन हम लोग भगवान का इमिटेट करते हैं। हम सोचते हैं हम क्रिएटर हैं। यही डिफरेंस है हमारे और भगवान के क्रिएशन में। हमारे क्रिएशन टेम्पररी है, भगवान का क्रिएशन भी टेम्पररी, लेकिन उसके पीछे एक पर्पस है। भगवान के क्रिएशन के पीछे, ये भौतिक जगत का क्रिएशन के पीछे एक पर्पस है, ताकि भौतिक जगत में जो वासियाँ हैं उनको एक मौका दिया जाए सुधारने के लिए। लेकिन हम जो क्रिएट करते हैं उसमें कोई पर्पस नहीं है, अपने आत्म तृप्ति का पर्पस है, अपना भौतिक इंद्रियों की तृप्ति के पर्पस है।
और हमारा क्रिएशन केवल एक रीअरेंजमेंट है जो भगवान ने ऑलरेडी दे दिया है। ये भौतिक तत्व जो है जिसके माध्यम से सृष्टि हम कर पा रहे हैं वो केवल रीअरेंजमेंट है जो ऑलरेडी है। जैसे अर्थ, वाटर, ईदर, फायर है, हमको बिल्डिंग बनाना है तो उसको सबको जोड़ो एक मात्रा में और बन गया मिट्टी, बन गया ईंट, पत्थर बन गया, सीमेंट बन गया और बिल्डिंग खड़ा कर दिया और हम कहते हैं हमने बनाया, ये हमारी क्षमता है। तो ये है भगवान में और हमारे क्रिएशन के बीच का फर्क। प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पे भक्त के लिए कोई इच्छा नहीं है यहाँ पे आगे बढ़ कर के, क्योंकि इतना सब समझा रहे हैं कि भगवान की शक्ति क्या है, भगवान का इस क्रिएशन और हमारा क्रिएशन के बीच में क्या फ़र्क है। और भक्त ये सब समझने का जब प्रयास कर रहा है तो भक्त कहता है कि मेरा कोई इच्छा नहीं है इस भौतिक जगत में। उनको पता है सब कुछ विनाश होने वाला है, तो मैं ऐसा क्यों इच्छा करूं, ऐसा कुछ डिज़ायर क्यों करूं जो अंत में विफल होने वाला है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं देयरफॉर ए डिवोटी डज नॉट डिजायर एनीथिंग इन द मटेरियल वर्ल्ड। तो क्या डिजायर करते हैं? डिजायर नहीं करते हैं इस भौतिक जगत में, तो फिर डिजायरलेस होकर के, ब्रह्मन होकर के एक कोने में ओम शांति हो जाते हैं? नहीं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पे डिवोटी डिजायर्स ओनली टू सर्व द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। उनका केवल एक ही इच्छा है, मुझे भगवान की सेवा करना चाहिए। प्रभुपाद जी बता रहे आगे, दिस सर्विट्यूड एग्जिस्ट एटर्नली। A devotee desires only to serve the Supreme Personality of Godhead. This servitude exists eternally. The Lord exists eternally, His servitor exists eternally, and the service exists eternally. प्रभुपाद जी बता रहे यहाँ पे ये जो सेवा का जो भावना है भगवान के प्रति, ये एटर्नली एग्जिस्ट होता है, क्योंकि ये हमारा नेचुरल भावना है। सेवा भावना जो है हमारा नेचुरल भावना है, ये नित्य हमेशा शाश्वत रूप से हमारे साथ रहता है हमारे भावना में। एंड सर्विस ऑल्सो एग्जिस्ट एटर्नली, लॉर्ड ऑल्सो एग्जिस्ट एटर्नली। भगवान भी शाश्वत नित्य रहते हैं और उनके जो सेवक है वो भी शाश्वत हैं। तो इस भौतिक जगत में अगर हम भगवान के प्रति संबंध बनाना चाहते हैं या कनेक्ट रहना चाहते हैं, तो ऐसे माध्यम से, इन माध्यम से हम भगवान से भौतिक जगत में संपर्क में रह सकते हैं, जुड़े रह सकते हैं। किसके माध्यम से? सेवा के माध्यम से और सेवा भावना के माध्यम से हम जुड़े रह सकते हैं, और सेवक के माध्यम से भी हम जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि भगवान अकेले नहीं है, भगवान हमेशा उनके भक्त के साथ रहते हैं। तो ये हमारे लिए एक टेस्ट है अपने आप में कि हम क्या मैंने भगवान के प्रति सेवा करने के लिए भावना है। सर्विट्यूड मतलब सर्वेंट एटीट्यूड, सर्विस एटीट्यूड। भौतिक जगत में हम मास्टर बनना चाहते हैं, मास्टर एटीट्यूड रहता है हमारे भावना में। हम सब में काबू पाना चाहते हैं, सबको नियंत्रण करना चाहते हैं, हर एक वस्तु को हम कंट्रोल करना चाहते हैं भौतिक जगत में। ये हमारे लिए टेस्ट है, क्या मेरे भावना में सर्वेंट भावना है या सर्विस भावना है या मास्टर भावना है। और सर्विस भावना या सर्विट्यूड एटीट्यूड या सर्वेंट एटीट्यूड या सर्विस एटीट्यूड, सर्विस एटीट्यूड मतलब सर्विस करने के लिए जिस प्रकार का भावना चाहिए, जो सही भावना चाहिए, उस प्रकार से वो सेवा देते हैं। और सर्विस एटीट्यूड जो है वो अपने आप में नहीं आएगा। जब हम सेवा में लगे रहेंगे तो हमारा जो कॉन्शियसनेस जो है
ये कई बार हो सकता है, भले हम सेवा में लगे हैं लेकिन हमारा भावना जो है सेवा का भावना नहीं रहे कभी, ये हो सकता है। भक्ति की शुरुआत में ये हो सकता है कि सेवक का जो भावना सेवा में नहीं रहेगा, सर्व कॉन्शियसनेस जो है सर्विस एटीट्यूड में नहीं रहेगा, मास्टर एटीट्यूड में हो सकता है। सर्विस भी हम मास्टर एटीट्यूड में करना चाहेंगे, क्योंकि मास्टर एटीट्यूड का जो रोग है वो इतना इजीली नहीं जाएगा। उसको दबाने के लिए हमें एक प्रयास करना चाहिए, वो साधना करना चाहिए। साधना के माध्यम से, भक्त के सहायता के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से हमारे जो भावना जो है उसको सर्विस एटीट्यूड में ला सकते हैं। हमारा कॉन्शियसनेस उस तरह से आगे बढ़ सकता है। हम कभी बहुत सारे सेवाएं करना चाहते हैं, मुझे ये सर्विस करना है, वो सर्विस करना है, मुझे सर्विस करना है। पहले तो सर्विस नहीं करने का भावना रहता है, सर्विस से भागने का भावना रहता है। ये हमारा नेचुरल टेंडेंसी है। हमको समझना चाहिए, हमारे लिए मिरर है अपने आप में। देखो, मेरे में सर्विस करने के लिए भावना नहीं है। मंदिर आएंगे, नज़र चुप चुप करके दर्शन करके निकल जाना है, कोई पकड़ लेगा सर्विस के लिए। दैट मीन्स नो सर्विस। सर्विस करने के लिए भावना नहीं है तो सर्विस एटीट्यूड तो करोड़ों मील दूर। और जब सर्विस करने लगेंगे तो कॉन्शियसनेस कुछ और, तब अलग भावना है, मुझे बहुत सारा सर्विस करना है, मुझे ये करना है, वो करना है, प्रभु जी मुझे वो सर्विस दो, ये सर्विस दो। बिग बिग सर्विस करना है हमको। सर्विस एटीट्यूड जो है मैग्नीट्यूड, सर्विस मैग्नीट्यूड से डिफाइन नहीं होता है। सर्विस एटीट्यूड जो है कॉन्शियसनेस से रिफ्लेक्ट होता है, भावना से रिफ्लेक्ट होता है। कितने प्यार भरे, प्रेम भरे भावना से हम भक्ति करते हैं उसके ऊपर निर्भर है। जिस तरह से रूप गोस्वामी जो है भक्ति रसामृत सिंधु में सुदामा जी का उदाहरण देते हैं। सुदामा जो है, उनकी सेवा जो है क्वांटिटी के अनुसार अगर मेजर कोई करने जाएगा सोचेगा तो इसने भक्ति नहीं किया। क्या किया? एक हाथ, एक मुट्ठी भर पोहे को दे दिया और वो तो लखपति बन गया, करोड़पति बन गया। लेकिन भगवान ने क्या देखा उनमें? भगवान ने उनमें उनकी भक्ति देखा, उनका कॉन्शियसनेस को देखा। भगवान जो है प्रेम भरे भावना से के माध्यम से वो भक्ति का मेजर करते हैं। एक्सटर्नल मैग्नीट्यूड से नहीं मेजर करते हैं। जैसे हमें भावना रहता है बड़ा बड़ा सेवा करना चाहिए, ये करना है, वो करना है। मुझे 10,000 गीता बांटना है, मुझे 20,000 गीता बांटना है। लेकिन क्वांटिटी से अलोन सर्विस कॉन्शियसनेस डिफाइन नहीं हो सकता है। रूप गोस्वामी कहते हैं, कृष्णा बिकम्स obliged to loving spirit of the devotee and not exactly to the service rendered। भगवान को oblige कर सकते हैं, किस तरह से? लविंग स्पिरिट ऑफ द डिवोटी, जो प्रेम भरे व्यवहार जो है उससे भगवान को oblige कर सकते हैं। and not exactly to the service rendered। ओ मैंने बहुत बड़ा सर्विस किया, मैंने हजारों गीता बांट के आया तो भगवान प्रसन्न हो गए। नहीं, भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते। किससे प्रसन्न होते हैं? लविंग स्पिरिट। वही 1000 गीता जो है लविंग स्पिरिट से अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, भगवान जो है डेफिनेटली प्लीज हो जाते हैं। अगर हम केवल क्वांटिटी के पीछे पड़ेंगे तो सिर्फ हम ही प्रसन्न होंगे, अपने आप पे हमको बहुत
क्या बोलते हैं, फक्र लगेगा। इट्स एन उर्दू वर्ड, आई डेंट गेट एग्जैक्टली हिंदी वर्ड। गर्व महसूस होगा, बढ़िया 1000 गीता बांट लिया मैंने आज। और 4 लोग बोलेंगे वो वाह प्रभु जी बहुत अच्छा आपने बांट दिया, और भी उनको अच्छा लगेगा। या कोई किसी का व्यवहार के प्रति प्रशंसा करेगा, वो प्रभु जी आपके बहुत अच्छा व्यवहार है, बहुत शांत रहते हो, बहुत कम बोलते हो, गॉसिप नहीं करते आप। तो सक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइफ इन पैरामीटर से डिफाइन नहीं होता है। सक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइफ भगवान के प्रति कितना प्रेम जागृत हुआ हमारे हृदय में, उससे मापा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है क्वांटिटी का रोल नहीं है, क्वांटिटी का रोल है, लेकिन केवल क्वांटिटी का ही रोल नहीं है, कहने का मतलब। तो नो वन कैन सर्व कृष्णा कंप्लीटली, ही इज सो कंप्लीट एंड सेल्फ सफिशिएंट दैट ही हैज नो नीड ऑफ एनी सर्विस फ्रॉम द डिवोटी। भगवान कितने पूर्ण हैं, उनके किसी भी प्रकार के भक्त से, कोई भी व्यक्ति से कोई भी प्रकार का सेवा की आवश्यकता है ही नहीं। It's the devotee's attitude of love and affection for Krishna that makes him obliged. भक्त के जो भावना है, प्रेम और भक्ति का जो भावना है, उससे जो है भगवान obliged हो जाते हैं। A very nice example of this obligatory behavior was manifested when Sudama Vipra went to Krishna's palace. Sudama Vipra had been a class friend of Krishna's, and due to his poverty, he was induced by his wife to see Krishna to request some aid. When Sudama Vipra reached Krishna's palace, Krishna received him very well, and both he and his wife washed his feet of Sudama Vipra, showing respect to the Brahmana. Remembering his loving affairs with Sudama in their childhood, Krishna began to shed tears while receiving him. तो भगवान जो है ये क्वांटिटी से कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। जैसे मैंने बताया, क्वांटिटी से सिर्फ हम लोग प्रसन्न होते हैं। जब प्रभुपाद जी के प्राकट्य लीला चलता था, तब प्रभुपाद कोई एक मंदिर में आते हैं, तो उस समय में जो है सभी वेस्टर्न वर्ल्ड में मैराथन जो है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो है बहुत ही प्रोमिनेंट सर्विस था। सब लोग लेफ्ट राइट गीता भागवत बुक्स, प्रभुपाद के बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में बहुत माहिर है। तो बहुत सारा सक्सेस भी आया उनके सेवा में। तो प्रभुपाद जी वहाँ पे आए और लेक्चर देते हैं। जब भी प्रभुपाद कहीं पे आते तो अराइवल लेक्चर होता है, और प्रभुपाद सुनते हैं बहुत सारा ये जो सर्विस जो रिजल्ट्स है उसको उनको अपडेट किया जाता है। प्रभुपाद उनको एंकरेज भी करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो काफ़ी लोग सबको अच्छा लगता है। तो एक भक्त ने प्रभुपाद को प्रश्न पूछते हैं कि प्रभुपाद जी आपको आपको प्रसन्न करना है तो कैसे कर सकते हैं? What pleases you the most? तो प्रभुपाद जी से सब लोग इच्छा रखते थे कि आप और ज़्यादा सर्विस करो, और ज़्यादा बुक्स बांटो। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा कि डेवलपिंग लव फॉर कृष्णा इज़ अ सक्सेस ऑफ एनी डिवोशनल सर्विस। कृष्ण के प्रति प्रेम को आप जागृत करिए। If you become attached to Krishna, if you develop love and affection for Krishna, that pleases me most. प्रभुपाद कह रहे हैं अगर आप भगवान के प्रति प्रेम जागृत करते हो, कर पाते हो, ये मेरे लिए बहुत प्रसन्न लगता है। और दूसरे एक इंस्टेंस में जब प्रभुपाद जी लंदन में रहते हैं, तब ऑलमोस्ट प्रभुपाद जी का अंतिम लीला का समय था वो, क्योंकि लंदन से प्रभुपाद इंडिया आ जाता है बीच में, और वहाँ पे जो डिवोटीज़ हैं वो सब लोग को प्रभुपाद जी बुलाते हैं, मेरे सभी भक्तों को बुलाओ। और सभी ये जो भक्त लोग थे सभी बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स थे और पावरफुल बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स थे। सब लोग प्रभुपाद बुला रहे हैं तो बढ़िया है, सब कुछ होगा, इम्पोर्टेंट चीज़ होगा। तो सब लोगों ने प्रभुपाद के सामने आए, तो ये सब बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो उनको लगा कि प्रभुपाद हमको थोड़ा प्रशंसा करेंगे,
थोड़ा हमारा गुणगान गाएंगे तो प्रभुपाद जी उनको सवाल पूछते हैं, आर यू रीडिंग माई बुक्स? सो इफ यू आर नॉट रीडिंग माई बुक्स, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग? एक और सवाल पूछते हैं, हमारा फिलॉसफी का एसेंस क्या है? तो हर एक व्यक्ति अलग अलग जवाब देते हैं। कोई कहता है हमारा फिलॉसफी है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, कोई कहते हैं हमको संकीर्तन करना है नगर आदि ग्राम। तो प्रभुपाद जी ने कहा आवर फिलॉसफी इज, एसेंस ऑफ आवर फिलॉसफी इज दैट वी आर एटर्नल, हम नित्य है, हम शाश्वत है, हम ये शरीर नहीं है, हमको इस शरीर के भावना से बाहर आना है। देखिए प्रभुपाद जी उस टाइम में उनका ऑलमोस्ट अंतिम समय में आए, वो हमको वही रिमाइंड कर रहे हैं कि वी आर नॉट दिस बॉडी। लेकिन सब भक्त लोग सोचते थे हमारा प्रशंसा करेंगे क्योंकि हम लोग अच्छे से बुक डिस्ट्रीब्यूट करके आए, तो प्रभुपाद हमको बुला करके तारीफ करने वाले हैं। अभी पूरा ठंडा कर दिया भक्तों को। तो हमारा जो भावना है, सर्विस एटीट्यूड जो है, क्वांटिटी से नहीं आएगा। क्वांटिटी दिखा करके, सक्सेस दिखा करके हमारा भावना बढ़िया है ऐसा कह नहीं सकते। लेकिन उस सक्सेस के साथ अगर हमारा भावना जो है लविंग स्पिरिट रहेगा, देन दैट इज परफेक्ट सर्विस। नो डाउट इनिशियली वो क्वांटिटी के पीछे हम दौड़ेंगे डेफिनेटली, लेकिन हमको समझना चाहिए दिस इज नॉट द ओनली थिंग। क्वांटिटी तो ऑटोमेटिकली दौड़ के आएगा अगर हमारे पास लविंग स्पिरिट है, क्योंकि हम में गुण और कर्म है। हमारे पास भी एक पैशन है जो हमारे पूर्व काल से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उसको बर्न करना है, उसको डाउटेल करना है भक्ति के समय में। उसके माध्यम से थोड़ा सक्सेस आ जाता है भक्ति में, लेकिन दैट डजंट डिफाइन वेदर समवन इज एडवांस्ड इन लविंग डिवोशनल सर्विस। इट्स मोर टू डू विद द कॉन्शियसनेस। हमारे जो चेतना है, हमारे जो भावना है, उसी भक्त को अगर हम नेक्स्ट डे मंदिर में मार्जन करने के लिए बताएंगे तो मन में बड़ा सा पत्थर रख दिया ऐसा आएगा भावना। तो दैट मीन्स वेयर इज अ लव, वेयर इज अ लविंग स्पिरिट? वो प्रेम भरे भावना किधर गया, कहाँ है वो? सो दैट इज अ टेस्ट। सो दिस सर्विस एटीट्यूड इज सो मच इम्पॉर्टेंट भक्ति में। अगर ये सर्विस एटीट्यूड डेवलप नहीं होगा तो हमारे भक्ति में, भावना में, हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस एंडिवर जो है वो परफेक्शन स्टेज यानी लव फॉर कृष्णा वो डेवलप इजीली नहीं हो पाएगा। और इनके माध्यम से हम भगवान से इस जगत में कनेक्ट रह सकते हैं। इफ समवन इज नॉट डेवलप्ड कनेक्शन टू सर्विस, सर्वेंट, सर्वेंट भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मैं और लॉर्ड हाँ बस हो गया, नहीं। He has to see Lord in each and every servant of the Lord। जैसे रुक्मिणी देवी जो है वो जैसे भगवान, जैसे सुदाम विप्रा आए घर में, महल में, तो रुक्मिणी देवी उनको कहते हैं कि लॉर्ड यू आर एटर्नली रिसाइडिंग इन लॉर्ड्स हार्ट एंड लॉर्ड इज डायरेक्टली टॉकिंग टू यू, स्पीकिंग टू यू। वन हैज टू सी, भक्तों में उस भगवान का संबंध देखना चाहिए। लेकिन हम भक्तों में भगवान का संबंध नहीं देते हैं, लेकिन भगवान में, भक्तों में हम उनका खोट देखते हैं। हम वी सी द फॉल्ट्स इन देयर, बिकॉज ही इज ऑल्सो पुअर फेलो, ही इज स्ट्रगलिंग विथ हिज ओन challenges and is trying to do his service on his with in spite of the faults। बट हम लोग जो है दूसरे का त्रुटि देख करके उस पर मजा लेंगे। कैसे मजा लेंगे? उसको पॉइंट आउट करते हुए। So if someone is not connected to Lord through these means, क्या है? Service attitude, through the servant and through the service, then for them Krishna says he has to come under the control of Kala। और जो व्यक्ति जो है सेवा भावना से भगवान की सेवा में रहते हैं, उनके लिए काल का सिद्धांत
नहीं अफेक्ट करेगा. दैट इज द अंडरस्टैंडिंग. सो दैट इज वाई दिस 3 थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. सर्विस एटीट्यूड एंड सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड. ऑल आर एटर्नल. और भक्त को हमेशा भगवान के साथ संपर्क बनाए रखना है. इन तीनों के माध्यम से बनाए रखना पड़ेगा. ठीक है. श्रीमद् भागवतम की, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की.